ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا دورہ سوپور، ترقیاتی منظرنامے اور طبی سہولیات کی دستیابی کا لیا جائزہ۔ کشمیری پنڈت راہل بٹ کی ہلاکت کے خلاف جموں کشمیر میں احتجاجی مظاہرے۔ بانڈی پورہ میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، اور کٹرا میں ایک المناک حادثے میں 4 یاتری از جان۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سوپور کا دورہ کر کے وہاں کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال سوپور میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کو جدید سہولیات اور دیگر خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے اور اس سمت میں بامعنی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی نے سوپور اسپتال میں داخل مریضوں کے ساتھ بات کی اور وہاں جاری میگا ہیلتھ کیمپ میں طبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ بعد میں لیفٹیننٹ گورنر نے سوپور کے ڈاک بنگلے میں پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں آگہی حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر کی جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر مملکت بی ایل ورما نے آج گاندربل میں قائم ملک پروڈیوسرز ڈیری کوآپریٹو سوسائٹی کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سوسائٹی 1982 میں قائم کی گئی ہے اور اس وقت دودھ کی پیداوار سے وابستہ 318 افراد اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ وزیر کو بتایا گیا کہ سوسائٹی نے اپنے منافع سے 10 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے قائم کیے ہیں۔ وزیر نے اس قسم کی مزید کوآپریٹو سوسائٹیز قائم کرنے میں مرکز کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا ہے کہ بھارت کو 2047 تک گلوبل لیڈر بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک کلیدی رول بنتا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے نیتی آیوگ کے زیر اہتمام ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں کیا، جس کی صدارت مرکزی کابینہ سیکرٹری راجیو گابا نے کی۔ میٹنگ کے دوران انڈیاز ویژن ٹو 2047 کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں کئی مرکزی سیکرٹریوں کے علاوہ نیتی آیوگ کے سی ای او امیتابھ کانت اور ان تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے چیف سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر مہتا نے کہا کہ خوشحالی کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا وقت کا تقاضا ہے اور اس طرز عمل کو اپنا کر بھارت کو اقتصادی میدان میں سپر پاور بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا کہ گلوبل لیڈر بننے کے لیے ملک میں تمام وسائل موجود ہیں۔ اس سے قبل راجیو گابا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے امرت کال کے مختلف پہلوؤں کا خلاصہ کیا۔ قانون کی مرکزی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری جی آر رگھویندر نے آج چاڈورہ کا دورہ کر کے وہاں عدالت کی نئی عمارت کی مجوزہ تعمیر کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے چاڈورہ بار ایسوسی ایشن ممبران کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے کہا کہ چاڈورہ میں جدید سہولیات سے لیس عدالت کی عمارت کے ساتھ ساتھ وکلاء کے لیے چیمبرز اور جج صاحبان کے لیے رہائشی سہولیات تعمیر کی جائیں گی۔ پلوامہ کے ایک نواحی علاقے گڈورہ میں آج صبح ملیٹنٹوں نے ایک ایس پی او پر اندھا دھند گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا۔ ریاض احمد ٹھوکر نامی مذکورہ ایس پی او کو اگرچہ فوری طور اسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے فوراً بعد پولیس اور فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ ریاض احمد ٹھوکر کی ہلاکت کی خبر ملتے ہی ان کے آبائی گاؤں گڈورہ میں صف ماتم بچھ گئی اور لوگ آہو بکا کرتے دیکھے گئے۔ بعد میں وہاں ریاض احمد کی آخری رسومات انجام دی گئی اور نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چاڈورہ میں کشمیری پنڈت کی ہلاکت کے واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں اور افراد نے اس واقعے کو بہیمانہ اور بزدلی سے تعبیر کیا۔ دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج مہلوک کشمیری پنڈت راہل بٹ کے سوگوار کنبے کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آجہانی کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی کا یقین دلایا اور کہا کہ ملیٹنٹوں اور ان کے معاونین کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ نیشنل کانفرنس نے چاڈورہ میں سرکاری ملازم راہل بٹ اور پلوامہ میں ایس پی او ریاض احمد کی ملیٹنٹوں کے ہاتھوں ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ راہل بٹ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے کشمیری پنڈتوں پر طاقت کا استعمال کیا گیا، جس کی انہوں نے مذمت کی۔
PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी चाडूरा में राहुल भट्ट की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस नाजुक घड़ी में बाहमी रवादारी और भाईचारे को बनाए रखें। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पुलवामा में SPO की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीर में शहरी हलाकतों को रोकने के लिए मुनासिब इकदाम करने की जरूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाकयात के पीछे हमारे हमसाया मुल्क की साजिश है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी खान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। सीनियर सियासी लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मिलिटेंटों के हाथों राहुल भट्ट की हलाकत पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। इस दौरान शेखपुरा पंडित कॉलोनी में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते हुए आज हुमहामा में एहतजाज करते हुए एयरपोर्ट रोड की तरफ पेशकदमी की कोशिश की। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन कश्मीरी पंडितों की मुनासिब हिफाजत यकीनी बनाने और राहुल भट्ट के कातिलों को जल्द सजा देने की मांग कर रहे थे। राहुल भट्ट की बेईमाना हलाकत के खिलाफ मटन अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों ने आज सख्त एहतजाज किया। पंडित तबके से वाबस्ता मर्दुजन ने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करके कातिलों को करार वाक़ की सजा देने की मांग की। एहतजाजियों ने खन्नाबल पहलगाम रोड पर धरना दिया। बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने भी राहुल भट्ट की हलाकत को लेकर आज अनंतनाग में एहतजाज किया। पार्टी के जम्मू और कश्मीर शाख के नायब सदर सोफी यूसुफ ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसी हरकत में मुलव्विस हमसाया मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ तज़ियत की है। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने वादी में शहरी हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में ग्रुप के अरकान ने चाडूरा में राहुल भट्ट और पुलवामा में SPO रियाज अहमद की हलाकत को इंसानियत सोज वाक़या करार दिया है। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला कन्वीनर बशीर अहमद ने आज शहरी हलाकतों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ वादी के अतराफ अकनाफ में एहतजाजी मुजाहरे हुए और इस वाक़े की बड़ी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। बारामूला में भी कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने मुजाहरा करते हुए राहुल भट्ट के लवाकिन के हक में इंसाफ की मांग की। जम्मू में भी राहुल भट्ट की बेईमाना हलाकत के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन मुलव्विसीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान जम्मू में राहुल भट्ट की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बांडीपोरा के आरगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने आज बाद दोपहर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां तरफैन के दरमियान झड़प शुरू हुई जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम अजला का दौरा करके महकमे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। डॉक्टर सामून ने मालीगुंड शोपिया में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के इजाफी बुलाकों की तामीर के बारे में तफसीलात हासिल की। इस प्रोजेक्ट पर 13 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। उन्होंने मज़कूरा इदारे के कंप्यूटर सेंटर और लिसानी लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया और तालिबी इल्मों के साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की। उन्होंने ITI शोपियां के प्रिंसिपल को हिदायत दी कि वो जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबी इल्मों के लिए जानकारी कैंपों का इनेकाद करें ताकि उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों के बारे में आगाह किया जा सके। जिले के डिप्टी कमिश्नर और महकमे के डायरेक्टर भी उनके हमरा थे। कुलगाम के दौरे के दौरान डॉक्टर असगर हसन सामून ने ITI कॉलेज की कंप्यूटर लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। कॉलेज के तदरीसी अमले और तालिबी इल्मों के साथ गुफ्त शनीद के दौरान उन्होंने कहा कि महकमा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुनासिब इकदाम कर रहा है ताकि नौजवान ऐसे हुनरों की तरबियत हासिल करें जिनसे वो न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सके। उन्होंने तालिबी इल्मों से तलकीन की कि वो अपना मुस्तकबिल संवारने पर तवज्जो मरकूज करें। जिले के डिप्टी कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर VK सूद ने आज कोकरनाग के सागम और नागाम इलाकों में कायम किए गए फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का मुआयना किया। इन इदारों को चावल की मुशबुज्जी किस्म और मछलियों की पैदावार बढ़ाने के लिए कायम किया गया है। इस मौके पर CGM ने कहा कि किसानों को जदीद जानकारी फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मुश्क-बुज्जी की पैदावार में इजाफा किया जा सके। बाद में मछलियों की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनंतनाग में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ।
रियासी जिले के कटरा इलाके में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के यात्रियों को लेकर एक बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद झुलस कर लुकमे अजल बन गए। इस दौरान 16 से जायद अफराद आग से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू ने कहा है कि आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला की जानिब से आज यकमनपुरा पट्टन में एक मजलिस हुसैनी का इनकाद हुआ, जिस दौरान शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने वाक़या करबला और करबला के शुहदा की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर नवाख्वानी भी की गई। मजलिस में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सयाहती शोबे में कुछ होटल मालिकान और इस शोबे से जुड़े कई अफराद की जानिब से गैर मुनसिफाना तर्ज अमल अपनाने और सयाहती खिदमात की निरखों में बेतहाशा इजाफा करने के खिलाफ आज वादी के ट्रैवल एजेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स ने भी किरायों में गैर मामूली इजाफा किया है और इस तरह वादी का सयाहती शोबा बदनाम किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तर्जुमान फारूक कट्टू ने कहा कि हुकूमत इस सूरत हाल पर काबू पाने में सर्द मोहरी का मुजाहिरा कर रही है। उन्होंने सरकार से मुतालिबा किया है कि होटलों के किराए और दीगर खिदमात के निरखों में माकूलियत लाने के लिए जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। मुल्क में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गोल्डन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। ये स्कीम लोगों को मुफ्त या किफायती निरखों पर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अमलाई जा रही है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि इस स्कीम की बदौलत समाज के मफलूकुल हाल तबके को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत 3.25 करोड़ से जायद मरीजों ने मुख्तलिफ अस्पतालों में 3 खरब रुपए से जायद मालियत के तिब्बी फवाइद हासिल किए। मुल्क में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम शद्दोमद से जारी है और मुहिम के आगाज से अब तक 1,90,99,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड से मुतासर हुए 3,295 मरीज सेहतयाब हुए और वायरस से सेहतयाबी की कौमी शरह 98.74% बरकरार। इस दौरान मुल्क में 2,841 नए कोविड मामलात का पता चला है। इस वक्त मुल्क में कोविड के एक्टिव मरीजों की तादाद 18,604 है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5 मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 3 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे जबकि 2 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 4 मरीज शिफायाब हुए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सैयद मंतकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एहतमाम से नर्सिंग डे की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने तिब्बी निगहदाश्त में नर्सिस के रोल को उजागर करते हुए कहा कि इस तबके के बगैर इलाज मुआवजे का अमल नामुकम्मल है। मुकर्रीन ने नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया। शमाली कश्मीर के एक मारूफ रूहानी बुजुर्ग और माहिर तालीम हाजी पीर गुलाम नबी मखदूमी अपनी रहायशगाह डंगीवश रफियाबाद में इंतकाल कर गए। कई अदबी, दीनी और समाजी तंजीमों और अफराद ने हाजी पीर गुलाम नबी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान के साथ तज़ियत और हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम को उनके आबाई मकबरा डंगीवश में सुपुर्द लहद किया गया। उनकी नमाज जनाजा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने 15 रियासतों में राज्यसभा की 57 नशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इस सिलसिले में रवा महीने की 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 में मुकर्रर की गई है और वोट डालने का अमल जून की 10 तारीख को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के लिए नेट पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात मौखर करने से इनकार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि इम्तिहानात में ताखीर से मुल्क के तिब्बी ढांचे पर मनफी असरात पड़ेंगे। इम्तिहानात को मौखर करने के लिए डॉक्टरों के एक ग्रुप की जानिब से दायर की गई अर्जी को रद्द करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इससे उन पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्मों को जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने इम्तिहानात के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन की है। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।